Welcome back to my channel. Before starting the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. This is going to be part 3 of gravitation. Let's get started. Also need to know I'll be discussing tips and tricks, also numericals in the end of the series. So please watch the entire series. If you haven't watched the other two parts, I'll be mentioning their links in the description. Let's get started. So in the previous video I discussed about value of G on the surface of the earth. What is the value of G on the surface of the earth? The value of G is 9.8 or 9.77 meter per second square. It is taken as to be approximate around 9.8 meter per second square. But is value of G same everywhere? Is value of G same everywhere? I'll give you a minute to think on this. Is value of G same everywhere? The answer is no. The value of G is not same everywhere along the surface of the earth. The value of G is not same everywhere. The value of G changes with 3 different criteria. The criteria are change along surface of the earth, change with height and change with depth. I'll be discussing in detail how value of G changes along surface of the earth with height and with depth. Now you need to remember these things in detail. Why? Because you have give reasons based on them. Okay, you have give reasons on how does value of G change along the surface of the earth. Now we come to the first point. How does value of G change along the surface of the earth? Now you have to understand it. The earth is not completely spherical. As you can see over here in the diagram, the earth is not completely spherical. It bulges at the equator and it is flatter at the poles. Okay, it bulges at the equator and it is flatter over here. It is flatter at the poles. What does this mean? It basically means that the distance of the earth at the equator is more. यानी कि radius of the earth is largest at the equator and radius of the earth is smallest at the poles. Okay, तो poles आपको पता है polar regions पे क्या है, या फिर at the poles the earth radius is smallest and at the equator the earth's radius is largest. But why are we studying this? We are studying this because you need to know that G value is inversely proportional to 1 upon r square. G is inversely proportional to 1 upon r square. Now you had a formula. G का formula क्या था? G का formula था G is equal to gm square, right? G का formula क्या था? G is equal to gm square. इसका मतलब क्या हुआ कि G is inversely proportional to r square. इसका मतलब क्या हुआ कि G is inversely proportional to 1 upon r square. अब इसका मतलब क्या होता है? This basically means as d और radius, d and radius both are same, अगर आपका distance बढ़ेगा तो what will decrease? Acceleration due to gravity would decrease and the value of G will decrease. So how does value of G decrease along the surface of the earth? It basically is very simple. Now मैंने आपको क्या बताया था? इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है डिस्टेंस. So okay, तो value of G at the equator is nothing but 9.78. Because why is it so? Because value of G at the equator is low because वहाँ पे distance या फिर radius is more. Since distance is more or distance is largest, value of G is small. So what is the value of G at the equator? Need to remember 9.78 meter per second square. And what is the value of G at the poles? Value of G at the poles, you need to know that value of G is highest at the poles. Is what? Highest at the poles. The value of G highest at the poles is 9.832. Okay, it is 9.832 at the poles. Why? Because वहाँ पे डिस्टेंस क्या है? वहाँ पे डिस्टेंस यानी कि अर्थ का जो रेडियस है, the earth's radius at the poles is less. या फिर earth's radius at the poles is smallest
and hence value of g is largest at the poles. And what is the value of g at the poles? 9.832. So you may have a give reason on this. How will you answer this give reason? You basically have to say the earth is not exactly spherical, it bulges at the equator and it is flatter at the poles. Okay, now what we'll say next. Now since the earth is largest, the earth's radius is largest at the equator and its radius is smallest at the poles, the value of g differs along the surface of the earth. Then you have to add this point. The value of g is highest at the poles, and 9.832, and decreases along with decreasing latitude, and it is lowest at the equator. Okay, so we move ahead in this slide. Okay, so how does value of g change with height? Your second point, how does value of g change with height? Now as I discussed earlier कि what will decrease and what will increase अगर value of g is inversely proportional to distance, right? So value of g will decrease, क्या increase होगा? तो value of g will decrease, अगर क्या increase होगा तो distance increase होगा. But change with height, what इसका connection क्या distance है आपको समझ में आना चाहिए. So where do you live? We live on the surface of the earth. Man lives on the surface of the earth. Okay, we live on the surface of the earth. But as you go away from the surface of the earth, मतलब आपका height बढ़ गया, मतलब the object's height from the earth has increased. Okay, the object is going far away from the earth. The object is going away from the earth. तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रहा है. हाइट का मतलब क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस. सो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, व्हाट विल डिक्रीज? वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज. ओके, नाउ वी हैव अ टेबल ओवर हियर. नाउ व्हाट डज दिस टेबल से? सी, अगर सर्फेस ऑफ अर्थ पे हो आप तो वैल्यू ऑफ जी 0 है. ओके, एंड वैल्यू इज 9.8. वी आर डन, वी नो दिस. Now if you come to Mount Everest, what is the height over there? It has a height of 8.8 kilometer. And what is the value of g over there? The value of g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट से कोई चीज़ नीचे फेंकते भी हो तो कितने स्पीड से नीचे आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेम. ओके, सो देन वी कम ऑन टू मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून. कितना है? 36.6. एंड वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितना है? 9.76. ओ वी सी अ चेंज हो गया. व्हाट इज अ चेंज हो गया? 9.8 से थोड़ा चेंज हो गया 9.77 में. ना हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट होता है 400 किलोमीटर. मतलब 400 किलोमीटर अर्थ से वो सैटेलाइट यहाँ कहाँ होगा तो उसका उस पर वैल्यू ऑफ जी कितना ऐड करता है? 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन डिड नॉट मेमोराइज दिस, इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन. आपको जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए है. अब ये आपको ये सारे पॉइंट्स मेमोराइज करने की कोई गरज नहीं है. ओके, सो मैं वीडियो में बताता रहूँगा कि कौन से पॉइंट्स को मेमोराइज करना है, कौन से पॉइंट्स को नहीं. ओके, ना यहाँ पे हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट. हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज 35,700. कितना है? 35,700. मतलब बहुत ज़्यादा दूर होगा. तो अभी हाइट कितना रहेगा उसका? 0.225. कितना वैल्यू है? 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ जी. ओके, सो व्हाट वी लर्नड इन दिस? वी लर्नड इन दिस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस. यानी कि आप डिस्टेंस देखते हो, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. सो डिस्टेंस इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. ओके, नाउ वी मूव अहेड. हाउ डज वैल्यू ऑफ जी चेंज विद डेप्थ? नाउ व्हाट डज विद डेप्थ मीन? डेप्थ का मतलब हाउ ना, डेप्थ का मतलब क्या हुआ? मीन्स हाउ डीप इनसाइड यू आर गोइंग इनसाइड द अर्थ. ना, आप टू इमेजिन अगर एक इंसान एक होल करके अर्थ के सेंटर तक जाता तो उस पर वैल्यू ऑफ जी कितना होता? वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितना होता? लेट्स इमेजिन कितना होगा वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी. वुड वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज और वुड इट डिक्रीज? सो लेट्स आंसर दिस. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ना यहाँ पे अभी मैं आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर अगर हम अर्थ से दूर जा रहे हैं तो क्या कम हो जाता है? वैल्यू ऑफ जी कम हो जाता है क्योंकि क्या बढ़ रहा था? वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा था, राइट. बट अभी इन दिस केस क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि आप अर्थ के पास ही आ रहे हो, अर्थ के सेंटर में आ रहे हो, अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे हो. एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगा कि कम होगा? यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर या फिर 1/d स्क्वायर, ये इक्वेशन के हिसाब से अगर डिस्टेंस कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज, राइट. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों? विल लर्न. नाउ अंडरस्टैंड. ये सेंटर है आपका.
ये आपका अर्थ सेंटर है, ओके, एंड द पर्सन इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, द पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ओके। सो अगर इंसान ये पॉइंट तक आता है, सपोज इंसान ये पॉइंट तक आता है, मतलब इधर इतना ऊपर का पॉइंट क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है ना। द पर्सन कम्स ओवर हियर, तो ऊपर का अर्थ का पार्ट यूजलेस हो गया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, that the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, मतलब as the person is coming towards the earth center, मतलब जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, वो लोग तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाने में, तो ऊपर वाले पार्ट्स यूजलेस हो जाएंगे। तो एज द पर्सन इज फॉलोइंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, वैल्यू ऑफ जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, तो वो वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज नहीं हो जाएगा। एक ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये अर्थ है आपका, ये सेंटर है आपका, पर्सन इज़ फॉलोइंग ईयर, तो आपको ध्यान में रखना है कि एज पर्सन इज़ फॉलोइंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ये पार्ट यूजलेस हो गया, ये पार्ट यूजलेस हो गया, तो मतलब ग्रेविटी के लिए इतने पार्ट्स ही यूज़फुल रहेंगे, ओके। डिपेंड्स कितना पर्सन सेंटर की तरफ नज़दीक आया है, ओके। नाउ वी आर क्लियर विद दिस, चेंज विद देम। As the person falls to the center of the earth, the value of g decreases, since the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases. Okay, so we move ahead. Now, what is the value of g at the center of the earth? What is the value of g along the center of the earth? So, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, बट इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। What is the value of g at the center of the earth? अगर आपको वैल्यू पता है तो उसका रीज़न क्या है, मुझे इसका रीज़न भी चाहिए कि वैल्यू ऑफ जी सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना है और क्यों है, ओके। सो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा बट अगले वीडियो में, सो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है जी का वैल्यू वहाँ पे होने के लिए, ओके। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आई विल लव टू सी योर आंसर्स। देन मूव अहेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास, एज मास इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो अगर अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी कितना है 9.8, अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी कितना है 9.8, तो मून पे कितना होगा, मून पे वैल्यू ऑफ जी कितना होगा? सो हाउ विल यू कैलकुलेट? नाउ अंडरस्टैंड, मून का मास इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ, एंड मून पे वैल्यू ऑफ जी इज 1/6, मून पे वैल्यू ऑफ जी इज 1/6 कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। सो हाउ विल यू नो द आंसर? तो आपको करना पड़ेगा 1/6 इंटू 9.8 एंड यू गेट द आंसर टू बी 1.625, you get the answer to be 1.625 is the answer, or is the value of g on moon. What is the value of g on moon? 1.625. no, one more question over here, आपको और कौन से प्लैनेट्स के वैल्यू ऑफ जी पता है? मुझे वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर पता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर? द वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर इज 26, कितना है 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो? मतलब अर्थ से 260%, ऑलमोस्ट 260% ज़्यादा वैल्यू है वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर। मतलब इसका मतलब अगर आप वहाँ पे जंप करने की कोशिश भी करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू जंप ऑन जुपिटर, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 26 है। तो आपको और कौन से प्लैनेट्स के वैल्यू ऑफ जी पता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।